خدا کو ماننے کے لیے نبی کی ضرورت اور نبی کو ماننے کے لیے ولی کی ضرورت. واہ واہ. ضرورت ہی سب کچھ ہے. نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ضرورت آ گئی تو وضو بعد میں، جماعت بعد میں، پہلے ضرورت پوری کر کے موقع مل جائے، ایک آدھ رکعت بھی مل جائے تو غنیمت، ورنہ پہلے ضرورت. خدا کو ماننا ضروری اور ماننے کے لیے نبی کو ماننا ضروری، تو نبی کو ماننے کے لیے ولی کو ماننا ضروری. کارن کیا ہے؟ کارن یہ ہے، نبی اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، اللہ کا اسسٹنٹ، ایش دودھ. نبی اللہ کا نائب. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں آدم کو زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اصل ہے جو اس تک لے جائے. اصل تو اصل ہے، وہ ملے تو ملے، اور نائب کے پاس جانا، اصل کے پاس جانا. جب ہر نبی خدا کا نائب ہے تو نبی تک جانا، خدا تک جانا. ایسے جب ہر ولی نبی کا نائب ہے تو کسی ولی کے پاس جانا، نبی تک جانا. نبی تک جانے کے لیے مدینہ جانا ضروری نہیں. مخدوم شرف الدین یحییٰ منیری کے قدموں میں چلے جاؤ، مدینہ چلے گئے. واہ واہ واہ. شیخ علاء الحق پنڈوی کے قدموں میں چلے جاؤ، بارگاہ نبوت میں جانا ہو گیا. کیونکہ یہ مخدوم بہار شرف الدین یحییٰ منیری رضی اللہ تعالی عنہ رسول کے نائب ہیں. شیخ علاء الحق پنڈوی رسول کے نائب ہیں. اور آج ہم جس کے نام کا جلسہ کر رہے ہیں، مخدوم شمنانی رسول کے نائب ہیں. اب سمجھ گئے کہ اس کا نام کیوں مخدوم اشرف شمنانی کانفرنس رکھا؟ کیونکہ نائب کے پاس پہنچنا، اصل کے پاس پہنچنا. وضو کے بارے میں جو قرآن کی آیت ہے وہ کچھ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ لوگوں جب نماز کا ارادہ کرو تو وضو ضروری ہے، تو وضو کرو. اور پہلے کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، سب سے پہلے اپنا چہرہ دھو. ابے قرآن میں ہے کہ سب سے پہلے چہرہ دھونا چاہیے. اس کے بعد کوہنی تک ہاتھ دھونا چاہیے، سر کا مسح کرنا چاہیے، پیر دھونا چاہیے. یہ تو قرآن میں ہے. شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ چہرہ. فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو. اور تم کیا کرتے ہو؟ بنگالی ہو، بہاری ہو، اتر بھارتی ہو، بھیا برادری، تم تو کرتے کیا ہو؟ جب وضو کرتے ہو تو پہلے ہاتھ دھوتے ہو، پھر کلی کرتے ہو، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہو، پھر چہرہ دھوتے ہو. ابے اللہ کہہ رہا ہے چہرہ دھو. قرآن میں ہے کہ چہرہ دھو. یہیں سے اسٹارٹ، یہیں سے شروع ہے. اور تم ہاتھ سے شروع کرتے ہو. کہ سنی نے سر جھکا کے کہا وہ اللہ نے کہا ہے، یہ رسول اللہ نے کہا ہے. ہاں 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 ہاں. واہ 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 واہ. وہ کتاب اللہ میں ہے، یہ رسول اللہ. پھر کتاب اللہ کافی نہیں ہے. کہا نہیں، کتاب اللہ بھی شریعت ہے، کتاب اللہ بھی شریعت ہے. لیکن کتاب اللہ ہی شریعت ہے ایسا نہیں ہے. قرآن شریعت ہے لیکن قرآن ہی شریعت ہے، یہ بات نہیں ہے. قرآن والی نماز تو تم پڑھ ہی نہیں سکتے. اب جتنا قرآن میں ہے ویسے ہی پڑھو. اللہ اکبر کہا، رکوع میں گئے، سبحان رب العظیم کہا. کائے کو کہتا ہے؟ قرآن میں نہیں ہے.
سمع اللہ لمن حمیدہ مت بول، قرآن میں نہیں ہے. ربنا لک الحمد مت بول، قرآن میں نہیں ہے. اور جب سجدے میں جاؤ سبحان رب الاعلیٰ، نہیں، قرآن میں نہیں ہے. اور بیٹھ جاؤ تحیات میں، تو تحیات مت پڑھنا، قرآن میں نہیں ہے. تو کیسی نماز ہوگی؟ کھڑے ہوئے، جھٹکے سے نیچے گئے، جھٹکے سے اوپر آئے، جھٹکے سے سجدے میں گئے، جھٹکے کو پڑھنا تو ہے نہیں، قرآن میں نہیں ہے. اور بیٹھتے ہی سلام پھیر دیا، قرآن میں نہیں ہے. اے اللہ، جب تو نے نماز کو فرض کیا تو طریقہ کیوں نہیں بتایا گا؟ چپ، فرض میں کروں گا، طریقہ محبوب بتائیں گے. کوئی سنی نہیں ملے گا جو فرض ادا نہ کرتا ہو. مسافر ہوگا تو بھی فرض ادا کرے گا. سنت چھوٹ جائے مگر فرض نہیں چھوڑتا. 2 ہی رکعت ظہر اور عصر کی پڑھنی پڑے مگر پڑھتا ہے، فرض نہیں چھوڑتا. ڈٹا ہوا ہے فرض پہ، اڑا ہے فرض پر. لیکن دنیا میں کوئی ہمارا نام اہل فرض نہیں رکھتا. سنیوں کا بچہ فرض پر اڑا ہوا ہے، ڈٹا ہے، لیکن اس کا نام اہل فرض نہیں ہے، اس کا نام اہل سنت ہے. ایک بات اور سمجھتے چلیے، ہم قرآن کو مانتے ہیں تب بھی اہل فرض نہ ہوئے. ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں مگر اہل حدیث نہیں ہوئے. ہم کتاب کو بھی مانتے ہیں مگر اہل کتاب نہیں ہوئے. ہم اہل سنت ہوئے، کیونکہ اہل فرض ہونے سے حدیث چھوٹ جاتی ہے، اہل حدیث ہونے سے قرآن چھوٹ جاتا ہے، اہل سنت ہونے سے دونوں ہاتھ میں رہتا ہے. وضو کا خلیفہ کون ہے؟ تو قرآن نے ہمیں سمجھا دیا تیمم. تیمم تیمم اور تیمم جو ہے اس کے لیے زمین چاہیے، وضو کے لیے پانی، تیمم کے لیے مٹی. اور یہ پوری دنیا 2 ہی حصوں میں ہے. 3 بھاگ پانی ہے، 1 بھاگ مٹی ہے. پانی کے پاس ہو تو وضو کرو، پانی سے دور ہو تو تیمم کرو. نماز چھوڑنے نہیں دوں گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. آپ ایسی جگہ رہ نہیں سکتے جہاں پانی نہ ہو تو مٹی بھی نہ ہو، اور مٹی نہ ہو تو پانی نہ ہو. سمندر میں مٹی نہیں ملے گی مگر پانی ہے، اور جنگل میں سمندر نہیں ملے گا مگر مٹی ہے. تو وہاں یہاں ہو تو وضو کرو، وہاں ہے تو تیمم کرو. تیمم وضو کا نائب ہے، تیمم وضو کا خلیفہ ہے، یعنی تیمم وضو کی جگہ ہے. اور پاور تیمم میں کتنا ہے؟ پاور، جو پاور وضو میں. وضو کر کے تم فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وضو کر کے پڑھتے ہو، تیمم کر کے بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھ سکتے ہو. وضو کر کے تم فرض پڑھتے ہو، تیمم کر کے بھی فرض پڑھ سکتے ہو. وضو کر کے تم مسجد میں جاتے ہو تو تیمم کر کے جاتے ہو. وضو کر کے تم قرآن چھوتے تھے، پڑھتے تھے، تیمم کر کے بھی چھو سکتے ہو، پڑھ سکتے ہو. یعنی جو فائدہ وضو سے تھا وہی تیمم سے ہے، کیونکہ تیمم وضو کی جگہ ہے. تو جو فائدہ ہمیں نبی سے تھا وہی فائدہ ولی سے ہے. کیونکہ نبی کی جگہ پر ولی ہے، تو فیضان نبوت، فیضان ولایت سے ملتا رہے گا.
डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूँ, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूँ। मतलब जहाँ जहाँ आपका दरगाह है, मैं सब दरगाह पे जाता हूँ, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहाँ मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है, मैं वहाँ हर दरगाह पे जाता हूँ। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूँ, पहले गले में भी लटकाया हूँ। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहां पर था फिर मैं वहां पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो मैं इस्लाम में चलूं, तो जैसा आपको मैं बताया, ये जो दरगाह वगैरह, ये मैं मान के चलूं कि नहीं चलूं, मैं आपका मुंह से जानना चाहता हूं। जैसे खुदा ने आपको चुना है ना, तो आप मुझे बता दीजिए। भाई साहब ने सवाल पूछा है, उनने कहा है कि पहले भी सवाल पूछा था और मेरा ही पूछना चाहते हैं कि इसके बारे में किसने कहा। वो पहले बुत परस्ती करता था, फिर कहा कि दरगाह में जाने लगा, तो वो पूछना चाहता है दरगाह के बारे में। मैंने कुरान मजीद पढ़ा हूँ, कुरान मजीद में मुझे कोई भी आयत नहीं मिली जिसमें लिखा है धागा बांधना चाहिए। कुरान मजीद में कई भी आयत नहीं जिसमें लिखा है दरगाह जाना चाहिए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा है कि आप कब्र पे जाओ, कब्र पे जाएंगे तो आपको आखिरत का एहसास होगा कि आप आखिरत में कहाँ होंगे। इसीलिए कब्र पे जाना अच्छी बात है। आप उस शख्स के लिए दुआ कर सकते हैं, यू कैन प्रे फॉर हिम बट यू कैन नॉट प्रे टू हिम और थ्रू हिम। आप जब किसी के कब्र पे जाते हैं तो कब्र पे जाके उसके लिए दुआ कर सकते हैं, उसको या उसके जरिए नहीं कर सकते। मैं राजू शर्मा हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूँ। मैं अपने होश और आवाज से इस्लाम को कबूल करता हूँ। माशाअल्लाह, जिस तरीके से अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, आप देखते बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग अल्लाह के इस सही दीन की तरफ आ रहे। भाई साहब, आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ। आप मानते हैं कि अल्लाह एक है? हाँ, एक है। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। यस। आपको इस्लाम कबूल करने पे कोई भी जबरदस्ती कर रहा है? नहीं 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 नहीं। कोई भी माली दबाव? नहीं नहीं नहीं। कोई भी फिजिकल दबाव? कोई धमकी दे रहा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि इस्लाम को जबरदस्ती से किसी से कबूल कराना, जबरदस्ती से इस्लाम कबूल कराना इस्लाम में हराम है, ला इकराह फिद्दीन। लेकिन कोई दिल से करना चाहता है तो कर सकता है। आप अपने दिल से करना चाहते हैं? मैं अपने दिल से कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। तो मैं अरबी में कहूंगा, उसको आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। पैगंबर है। माशाअल्लाह, आप मुस्लिम बन चुके और इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि आपको और हिदायत दे और आप अमल में भी इंशाअल्लाह पक्के बने, और दुआ करूंगा कि इस दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह आपको सफलता मिले। ख़वातीन के शोबे में माइक नंबर 4 में कोई खातून हो तो उनको मौका दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आयशा है। मैं पहले हिंदू थी, मेरा नाम मेघा था। मुझे इस्लाम लाके 2 साल हुआ।
میں نے کلمہ پڑھ لیا, پھر مجھے آپ سے کلمہ پڑھنا ہے. माशाल्लाह बहन ने कहा कि उन्हें 2 साल पहले इस्लाम कबूल किया और फिर से कलमा पढ़ना चाहती है. मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी आपको जबरदस्ती कर रहा है नहीं. इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं. कोई दबाव? नहीं. कोई फिजिकल प्रेशर, माशी प्रेशर? नहीं. आप दिल से कर रहे हैं? हाँ. तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप दोहराइए. हाँ जी. और आप मानते कि खुदा एक है? जी. और आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ जी. मैं अरबी में कहूँगा और आप दोहराइए. जी. अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु. व रसूलुहु. मैं गवाही देती हूँ मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है. माशाअल्लाह. अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको जज़ाए खैर दे और इंशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में डाले. आमीन. आमीन. भाइयों के शोबे में कोई भाई हूँ? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, నా పేరు ఆనంద్. నేను స్టడీ చేస్తున్నాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో నేను తిరుపతి పోయేవాడిని. అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. మా హిందూ సాంప్రదాయంలో తిరుపతి పోయి ఉన్నప్పుడు అక్కడున్న భేదభావం చూసినాను. తినే విషయంలో కానీ, దర్శించుకునే విషయంలో గాను పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం చూసినాను. అలాగే ఇస్లాం ధర్మంలో పేదవాడిని తక్కువ చూపు చూడడం, అసహించుకోవడం ఇలా ఉందా? నా క్వశ్చన్. भाई साहब ने सवाल किया कि वो हिंदू घराने से हैं. वो जब तिरुपति जैसे जगह पर गए, उन्होंने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, कि गरीब लोगों को और निचले तबके के लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते थे. और वो जानना चाह रहे कि इस्लाम में भी इस तरह से गरीब लोगों को डिस्क्रिमिनेशन नीचा देखा जाता है क्या? भाई साहब का सवाल है, जब वो तिरुपति गए थे तो वहाँ देखा कि डिस्क्रिमिनेशन था, ऊंच नीच था गरीब और अमीर में. तो क्या इस्लाम में भी ऊंच नीच है क्या? इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़किन व उनसा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर. ए इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और औरत के जोड़े से बनाया है और आपको कबीले और बरादरी में बांटा है ताकि आप एक दूसरों को पहचान सको, ना कि आप एक दूसरों से नफरत करो. और आप में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो परहेजगार है. एक इंसान दूसरे इंसान से पैसे से, जिन से, उम्र से, रंग से ऊंच नीच नहीं हो सकता है. सिर्फ अगर परहेजगार है तो ऊंचा हो सकता है. आपका सवाल कि गरीब और अमीर में ऊंच नीच है, बिल्कुल नहीं. अमीर इंसान गरीब से बेहतर नहीं, गरीब इंसान अमीर से बेहतर नहीं. लेकिन अल्लाह के रसूल ने यह कहा कि गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है, क्योंकि उसके ट्रायल्स जो है, टेस्ट है, वो टेस्ट में और आसानी से सफलता पाएगा. जो अमीर इंसान है, जो ऐशो आराम करता है, उसे देने पड़ेगा ज़कात, उसे देने पड़ेगा दान, जो अक्सर लोग नहीं देते. इसीलिए गरीब इंसान को जन्नत में जाना और आसान है बनिस्बत अमीर इंसान से. अगर देखे जाए, क्योंकि अमीर और गरीब में गरीब इंसान अक्सर अमीर से ज्यादा अल्लाह के पैगाम पे अमल करता है. लेकिन कुल्ली तौर पे कोई इंसान एक दूसरे इंसान से ऊंचा नहीं है. रंग के बुनियाद पे, माल के बुनियाद पे, उम्र के बुनियाद पे, जिन्स के बुनियाद पे, सिर्फ एक ही बुनियाद पे ऊंचा हो सकता है, वो है तकवा, वो है परहेजगारी, वो है ईमान. जो आदमी के पास ईमान है और परहेजगार है, वो ही अल्लाह के नजदीक ऊंचा है. ये माइक नंबर 1 से. जय भीम, सलाम वालेकुम. जाकिर भाई, मैं बौद्ध धर्म का हूँ और मेरा सवाल ये है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना डिफरेंस है, कितना फर्क है? भाई साहब का सवाल है कि बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म में कितना फर्क है. ऊपर से देखे जाओ तो बहुत फर्क है, लेकिन तहकीक करेंगे तो कई यकसानियत है. बौद्ध धर्म में जो बुद्धा ने, गौतम बुद्धा ने जो 4 चीजें कही थी, उसने कहा था 4 ग्रेट ट्रुथ्स, दैट देयर इज सॉरो एंड मिजरी इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में
sorrow and misery है. The cause of this sorrow and misery is desire. Sorrow and misery can be removed by removing desire. To remove desire, follow the eightfold path. ये 4 ग्रेट truths है कि दुनिया के अंदर मिजरी है. इस मिजरी की वजह है डिजायर, इच्छा. अगर इच्छा को निकालेंगे तो मिजरी निकल जाएंगी. इच्छा को निकालने के लिए एटफोल्ड पाथ फॉलो करो. लेकिन जब आप इच्छा निकालेंगे, पहला नुक्ता बिल्कुल सही, दूसरा नुक्ता बिल्कुल सही, तीसरा नुक्ता, इच्छा को निकालने के लिए इच्छा निकालो और मिजरी निकल जाएंगी. जब आप इच्छा को निकालेंगे, चौथा हक है कि आप एटफोल्ड पाथ फॉलो करो. इच्छा निकल गए तो फॉलो कैसा करेंगे? सो लॉजिकली द ट्रूथ इज ट्रिपिंग इटसेल्फ. लेकिन ये जो 8 हक है, कई सही है, लेकिन बुद्धा ने ये भी कहा था, आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ बुद्धा बाय कैरिस, पेज नंबर 217 to 218. उसमें कहा है कि मैं एक अकेला बुद्धा नहीं हूं, मेरे बाद भी और बुद्धा आएंगे और आपको सही रास्ता दिखाएंगे. जैसा मेरे पास सैकड़ों मानने वाले हैं, इस बुद्धा के पास हजारों मानने वाले होंगे. जब उसके शागिर्द ने पूछा ये बुद्धा कौन है, तो उसने कहा ये बुद्धा है मैत्री. मैत्री का तर्जुमा करेंगे मर्सीफुल, रहमत. और हम जानते हैं कि कुरान में कहा गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107 में, वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल आलमीन, कि वो सारे आलम के लिए रहमत थे, सारे इंसानियत के लिए. तो इससे ये साबित होता है कि इस धम्मापट के अंदर और बुद्धिस्ट किताबों में भविष्यवाणी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में. और आप अगर मेरी कसट देखेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिगर मज़ाहिब में, उसमें एक सेक्शन है बुद्ध धर्म का. उसमें से ये मैंने दिखाया हूं कि बुद्ध धर्म में भी कहा गया है, बुद्धा ने कहा है कि एक आने वाला है पैगंबर, जो आखिरी पैगंबर रहेगा, वो आपको सही रास्ते दिखाएगा, उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और जानने के लिए मेरी कसट देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिगर मज़ाहिब में. वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.